Good morning, friends. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, Kriya Sharir, फिजियोलॉजी इन आयुर्वेदा। आज हम जो बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है अपना सिलेबस का टॉपिक पेपर 2 मॉडर्न फिजियोलॉजी, कंटिन्यूएशन ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बात कर ली है, दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने जनरल फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल ऑर्गन्स एंड डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल की हमने शुरुआत कर दी थी। वी टॉक्ड अबाउट द सर्टेन हार्मोन्स which includes in the oogenesis, and now we are actually talking about the oogenesis. Okay, oogenesis यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर्ड ओवम, द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर्ड ओवम। तो एक सही ओवम बनने तक जो प्राइमरी oocyte से पूरी प्रोसीजर और पूरी जर्नी जो रहती है, इट्स कॉल्ड एज अ oogenesis. ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ हाइप्लॉइड ओवम फ्रॉम डाइप्लॉइड oogoneum. ओके, तो development of haploid, you have to make sure these two terminology, that is haploid and diploid. Diploid means that cells contain two complete sets of chromosome. Okay, और haploid बोले तो cells have half the number of the chromosome, यानी कि single n cell is equal to haploid and 2 into n cell is equal to diploid. तो जनरली जो oogoneum जो रहता है वो इट्स अ डाइप्लॉइड, यानी कि कंप्लीट 2 सेट्स रहते हैं, मगर फर्टिलाइजेशन के दौरान हमें हाइप्लॉइड सेल यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही चाहिए, बिकॉज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म से आएगा। तो उसकी वजह से वी हैव टू जस्ट एब्स्ट्रैक्ट दी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम दी oogoneum, दैट इज़ इट बिकम्स इनटू हाइप्लॉइड ओवम. ओके, तो याद रखना यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि हाइप्लॉइड में से डाइप्लॉइड होगा, मगर नहीं। ये समझने के लिए पहले डाइप्लॉइड होता है, यानी कि नॉर्मल सेल होता है। नॉर्मल सेल में से उसे एन क्रोमोसोम जो है उसे लाना है, तो उसके लिए इट कॉल्ड एज अ डाइप्लॉइड oogoneum टू दी हाइप्लॉइड ओवम. ओके, तो ये एक क्लियर रखनी है माइंड के अंदर कि कैसे ये फॉर्मेशन शुरू होता है और कहाँ पे, और क्रोमोसोम सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना है, ये बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए. देन प्राइमरी oocyte, दैट इज डाइप्लॉइड सेल. अ सेल विच कंटेन्स 23 pairs of the chromosome is called as a diploid cell. All human cell except the sperm and the ovum are diploid cells. Okay, it's but natural because sperm and ovums, again there is a formation of one cell. It becomes a haploid to the again diploid cell when get conceived, or the sperm after the sperm and ovum get interact with each other. Okay, now primary oocyte से यानी कि डाइप्लॉइड सेल से हाइप्लॉइड सेल यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है वो बनता है. सेकेंडरी oocyte इज अ हाइप्लॉइड सेल्स as it contains only 23 unpaired chromosomes. Okay, so you mark this thing, primary and secondary oocyte, different between the primary and the secondary oocyte. Now then ovum, female germ cell. Okay, ovum is a female germ cell which is capable of the reproduction, is called as a ovum. Okay, so the definition of the ovum you have to know. Ovarian follicle. The ovarian follicle is the basic unit of female reproductive system which surrounds the primary oocytes. They are spherical aggregation of the cells located in the ovary. Primary oocytes in ovary are surrounded by the ovarian follicle. Okay, तो primary oocyte, single oocyte जो रहता है वो it's covered by the ovarian follicle. Oocyte obtain nourishment from the secretion of the follicular cells. There is a one different cell that called as a follicular cell. उसकी secretion से oocyte जो है वो nourish होता रहता है and it grows further. तो stages of follicular development, the first one is a primordial follicle, then primary follicle,
then vesicular follicle. Okay, the three types of the follicle are there. It contains the primary oocyte and the secondary oocyte. Okay, primordial follicle, that in female fetus primary oocyte develops in the primordial follicle. Okay, तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो डेवलप होता है इन प्रीमॉर्डियल फेमिकल. कब? इन दी फीमेल फीटस, जब वो फीटस होती है, यानी कि जो फीमेल है वो फीटस स्टेज के अंदर होता है, तब ये प्राइमरी oocyte डेवलप्स होता है इन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल के अंदर. व्हेन primary oocyte gets surrounded by the single granulosa cells, then such ovum with layer of granulosa cells is called as primordial follicle. यानी कि प्राइमरी oocyte जो होता है वो कवर्ड हो जाता है किससे? ग्रेन्युलोजा सेल्स से. तो उस कवरिंग के साथ में उस प्राइमरी oocyte को बोला जाता है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल. तो ये क्लियर रहना चाहिए. दी सेल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड आफ्टर द कवरिंग ऑफ द granulosa cell it called is turned into follicle, that is the प्रीमॉर्डियल फॉलिकल. और इसीलिए अगर आप देखो जब प्रैक्टिस के अंदर जाओगे तो देयर इज़ अ सोनोग्राम दैट इज़ USG, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो होता है वो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड. तो जनरली इन द फर्टिलिटी केसेस डॉक्टर सजेस्ट टू द फॉलिक्यूलर स्टडी. ओके, वेयर कंप्लीट स्टडी ऑफ फॉलिकल्स हैपन. तो उसके अंदर क्या होगा कि सिंपल ग्रोथ से लेकर, यानी कि सर्टेन डेज़ के बाद मेंस्ट्रुएशन के, अगर उसको हम पहला दिन गिने मेंस्ट्रुएशन का, तो उससे लेकर ऑलमोस्ट 10th डे के बाद वहाँ पे फॉलिकल्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है. एंड अराउंड 13 to 15 डेज़ फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है, यानी कि ग्रेन्युलोसा सेल्स के जो कवरिंग है वो रप्चर होती है और उसके अंदर प्राइमरी oocyte it turns into the secondary oocyte and turns into the tertiary oocyte and ultimately the tertiary यानी कि complete matured ovum. तो वो ओवम जो है वो रप्चर होता है उस फॉलिकल में से और वहाँ पे देखा जाता है कि फॉलिकल की साइज़ क्या है, या बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा. अल्टीमेटली ओवम जो है वो सिक्रीट यानी कि रप्चर होके बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा. कई बार ओवम रप्चर नहीं भी होता है, उसके अंदर फॉलिकल में से जो दीवार है, फॉलिकल की जो वॉल है वो रप्चर नहीं होती और ओवम जो है वो उसके अंदर ही रहता है. एंड इट टर्न्स इनटू द वाटरी सिस्ट. ओके, और वो स्टिक हो जाती है ओवेरी के ऊपर. एंड दिस एवरी मंथ वन सेल कम्स टू दिस सिस्ट एंड इट create the large या तो its big structure of the cyst is called as a PCOD यानी कि polycystic ovarian disease. Every month its cyst get aggravated or the increases in a size. Okay, तो दिस इज़ दी इनफर्टिलिटी केस में ये होता है और ये होने की वजह से डेफिनेटली ओवेरी का फंक्शन भी हैम्पर होता है और लीड्स टू दी मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ओके, तो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन वेसिकुलर फॉलिकल. ओके, दिस फॉलिकल्स वी हैव टू नो. Then function of granulosa cells, it provides the nourishment to ovum. ओके, तो ओवम जो है वहाँ पे जो ग्रो कर रहा है उसको नरिशमेंट के लिए ये ग्रेन्युलोसा सेल जो है वो वहाँ पे काम करते हैं. ओके, अराउंड द एज ऑफ 12 to 48. ओके, अराउंड द एज ऑफ 12 to 48 ईयर्स ऑफ द फीमेल 400 से 500 प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स डेवलप्स प्राइमरी फॉलिकल, out of which one ovum is released in the pelvic cavity every month. Okay, hormonal control of the growth of primordial follicle and the primary follicle after puberty. Growth of primordial follicle is controlled by, okay, growth of primordial follicle is controlled by the FSH, LH and ovarian hormone, that is estrogen and progesterone. Okay, especially estrogen. तो ये तीन चीज़ें जो है वो
प्रीमोडियल फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगेन ग्रेन्युलोसा सेल्स कंपल्सरीली ओवम को नरिश करने के लिए होते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए इन द फॉलिकल। फर्स्ट तो दिस इज द प्रीमोडियल फॉलिकल। सेकेंड वन इज द प्राइमरी फॉलिकल। Enlarged ovum along with deposition of additional layer of the granulosa cells is called as the प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसकी साइज़ बढ़ती है। तो फॉलिकुलर स्टडी के अंदर यानी कि यूएसजी की फॉलिकुलर स्टडी के अंदर ये फॉलिकल साइज़ जो है फॉलिकल की वो इंक्रीज़ होनी चाहिए और वहाँ पे दिखती है। ओके, इन द 28 days ऑफ द फीमेल in the first week 6 to 12 primary follicles grow at rapid rate। ओके, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो फीमेल सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो उसमें शुरुआत में ओवेरियन साइकिल के अंदर पहले वीक के अंदर 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करने शुरू करते हैं एट द रैपिड रेट अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ FSH। ओके, तो ये ध्यान में रखें, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ FSH 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल गेट स्टिमुलेटेड एंड गेट स्टार्ट इट ग्रोथ एट द रैपिड रेट। ओके, तो जल्दी से वो रैपिड 6 से 12 जो फॉलिकल रहते हैं वो फटाफट से ग्रो करने शुरू करते हैं एक साथ में। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है आगे देखेंगे। Theca cell surrounds the primary follicles। Theca cells around the primary follicles। तो ये second one cells are there under the stimulation of FSH। Adjacent cells in the ovarian stroma gather around granulosa cell which are called as theca cell। Okay, internal layer of the theca cell are called as a theca interna and the external layer of the theca cell is called as a theca externa। थीका यानी THECA। तो ये दो सेल्स के लेयर जो है वो ओवेरी फॉलिकल के ऊपर बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना यानी कि इनर लेयर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल रिलीजेस द एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, यानी कि थीका इंटरना जो कैप्सूल का जो लेयर है, ओके, थीका इंटरना यानी कि इंटरनल लेयर वो एस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है। एंड एक्सटर्नल लेयर क्या करेगा, तो इट टर्न्स टू द वेस्क्यूलर कैप्सूल ऑफ द ग्रोइंग फॉलिकल। ओके, तो वेस्क्यूलर वहाँ पे वेसल्स जो है वो अराइज होना शुरू हो जाएगी एंड अल्टीमेटली उसका जो फॉलिकल का ग्रो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, द फॉलिकुलर फ्लूइड उसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड जो रहती है उसके अंदर मेनली fluid secreted by the granulosa cells of the theca interna of primary follicle is called as a follicular fluid and it contains the estrogen। that follicular fluid contains the estrogen। Okay, now third follicle is a vesicular follicle। due to the stimulation of FSH primary 6 to 12 develops into the vesicular follicles। FSH and LH are essential for the growth of vesicular follicles। तो यहाँ पे again FSH and LH are working over here and the growth of the vesicular follicles is depend on the FSH and LH। Maturation of the vesicular follicle before ovulation, out of 6 to 12 growing follicle only one vesicular follicle grows rapidly and get matured and other 5 to 11 vesicular follicle involute and undergo atresia। atresia यानी कि physiological death of the cell। ओके, उसको बोला जाता है atresia। तो मैचुरेशन के अंदर जो 6 से 12 फर्स्ट वीक में प्राइमरी फॉलिकल, देन उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल एंड द वेसिकुलर फॉलिकल। तो वेसिकुलर फॉलिकल जो है वो अल्टीमेटली एक ही ग्रो होगा उसके अंदर। ओनली वन वेसिकुलर फॉलिकल ग्रोज रैपिडली एंड गेट मैच्योर। ओके, तो मैच्योरेशन की जब बारी आती है तो उसमें सिर्फ एक ही फॉलिकल जो है वो ग्रो होता है। ओके, तो ये सर्टेन टाइम यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 10 डेज़ के बाद में ये मैच्योरेशन जो है शुरू हो जाता है। Diameter of the mature vesicle follicle, that is the
वेसिकुलर फॉलिकल 20 mm to 22 mm। तो धीरे धीरे जो है उसका डायमीटर जनरली बढ़ता है और मैच्योरेशन के टाइम में 20 to 22 mm जितना उसका डायमीटर हो जाता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, तो इसके अंदर अभी तक प्राइमरी oocyte था। देन just before the ovulation, ovum in the vesicular follicle undergoes the first meiotic division to form secondary oocyte। Okay, prior to ovulation means shortly before it is released from the vesicular follicle, nucleus of the diploid ovum divides by the meiosis and first polar body is expelled from the nucleus of the ovum and primary oocyte is converted to the secondary oocyte। तो मायोसिस होने के बाद में ओवम कॉल्ड एज ए सेकेंडरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte के अंदर अभी भी डाइप्लॉइड सेल वो कहा जाता है और उसके बाद में जब उसका मायोसिस होने के बाद इट टर्न्स इनटू द हाइप्लॉइड सेल। ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ए सेकेंडरी oocyte। नाउ सेकेंडरी oocyte हैज़ ए 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम। हमेशा ये बात याद में रखें, हाइप्लॉइड एंड द डाइप्लॉइड, हाइप्लॉइड हैव 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम एंड द डाइप्लॉइड इज ए 23 पेयर्ड क्रोमोसोम। ओके, तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अल्टीमेटली प्राइमरी oocyte इज ए 23 पेयर्ड क्रोमोसोम कंटेन एंड द सेकेंडरी oocyte इज कंटेन्स द 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। तो ये मेन जो चेंजेस है आपको याद रहने चाहिए इसके अंदर। Then ovulation। okay, ovulation के अंदर generally the process in which vesicular ovarian follicle ruptures and the ovum get released। तो ovulation के अंदर simply जो वेसिकुलर फॉलिकल बना था, जो ग्रो हुआ था, 6 से 12 फॉलिकल्स जो ग्रो कर रहे थे उसमें से सिर्फ एक ही ग्रो हुआ और अल्टीमेटली उसमें से जो मैच्योर ओवम है वो रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होने की प्रोसीजर और वो जो रिलीज़ होता है उस टाइम को, उस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है ओव्यूलेशन। ओके, और वो कहाँ रिलीज़ होगा तो ये हमें याद में रखा है, इट्स रिलीज्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी, इट नॉट रिलीज्ड इन डायरेक्टली टू द फैलोपियन ट्यूब। ओके, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्टली रिलीज़ नहीं होता, वो पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज़ होगा और अल्टीमेटली फैलोपियन जो फिम्ब्रिया है वो फिम्ब्रिया उसको अट्रैक्ट करके अंदर ले लेंगे और फिर वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होगी। तो दिस इज़ द थिंग वी हैव टू सी, ओवुलेशन ऑलवेज अकर्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। आफ्टर द ओवुलेशन ओवम इज़ वायबल फॉर द मैक्सिमम 72 आवर्स, यानी कि ओवम की जो लाइफ होती है वो जनरली 3 दिन की होती है, यानी कि 3 दिन तक इट मे गेट कंसीव्ड और इट मे गेट कंसेप्शन। ओके, स्पर्म का जो मिलन होता है ओवम के साथ में, यानी कि स्पर्म एंड ओवम जो पहली बार मिक्स होते हैं तो वो होने के चांसेस से 72 आवर्स यानी कि 3 डेज़ तक रहता है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए और इसी पर्टिकुलर चीज़ को आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसे कहा जाता है ऋतुकाल, यानी कि ओवुलेशन जब होता है इट्स कॉल्ड एज अ ऋतुकाल। और ऋतुकाल के अंदर अगर हम कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली देयर मे बी इंक्रीज्ड चांस ऑफ द कंसीविंग, ओके, कंसेप्शन। तो जब भी आप गर्भ संस्कार या उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ओवुलेशन कब हो रहा है और उसके बाद में कैसे हमें स्पर्म के साथ में उसे कोरिलेट करना है एंड देन यू हैव टू गिव अ सर्टेन डेज टू दी कंसेप्शन। ओके, अगर मैक्सिमम स्पर्म जो है वो सर्वाइव करेगा, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स नहीं होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो स्पर्म की क्वालिटी जो होगी वो मैक्सिमम अच्छी रहेगी और वी कैन से दी शुद्ध शुक्र वो बन सकता है। ओके, अगर बार बार हम इंटरकोर्स करके उसका वेस्टेज करते रहेंगे और कंसीव नहीं हुआ तो क्वालिटी गेट डिक्रीजेज डे बाय डे एज पर आयुर्वेदा आई एम सेइंग। तो ये बात ध्यान में रखें, शुक्र धातु की क्वालिटी जो है वो हमेशा ब्रह्मचर्य के साथ इंक्रीज़ होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो जब भी आप कंसीव करवाने की कोशिश कर रहे हो या गर्भ संस्कार कर रहे हो तो उसमें मिनिमम सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ में अगर कंसीव हो जाए तो इट्स अ गुड थिंग। और इस चीज़ के लिए हमें एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि ओव्यूलेशन कब होता है।
तो जनरली वी आर गिविंग दी और वी आर सजेस्टिंग दी टेस्ट दैट USG ऑफ फॉलिकुलर स्टडी। तो उससे हमें एग्जैक्ट डे जो है वो पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, तो वी कैन सेव दी स्पर्म मैक्सिमम वे। ओके, प्रॉपर टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन इन दी नॉर्मल 28 डेज फीमेल सेक्सुअल साइकिल। जनरली ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ वो अगर हम फर्स्ट डे गिने तो उससे लेकर 14th डे तक 14 डे को जो ओव्यूलेशन है वो इन जनरल होता है। ओके, तो ये हमें बेसिक पता है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, नाउ इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ वेसिकुलर फॉलिकल, उसका क्या होगा, क्योंकि ओवम जैसे कि बाहर निकल गया तो उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, इट्स वेरी नेसेसरी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम होगा तो जो डिफरेंट हार्मोन है वो सिक्रीशन होंगे, दैट हार्मोन नेम्ड इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहा जाएगा, तो जो वेसिकुलर फॉलिकल था रप्चर होने के बाद, ओवम जो है वो बाहर निकलने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग वेसिकुलर फॉलिकल रहता है, इट टर्न्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, यानी कि डेड पार्ट वी कैन से, कॉर्पस यानी कि डेड। तो ये समझा जा सकता है कि आफ्टर द ओव्यूलेशन उसका कोई मेजर काम नहीं रहता, तो इसीलिए उसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, आफ्टर द ओव्यूलेशन due to the rupture of vesicle follicle, cavity is formed inside the follicle. Okay, and due to the rupture, bleeding occurs in the ruptured follicle because vesicular था, वहाँ पे vessels वगैरह थी, तो bleeding की वजह से blood accumulates in the follicular cavity, जो cavity में ovum था, blood get clotted in the follicular cavity. Few hours after ovulation, granulosa and the theca interna cells grow and get filled with lipid. ओके, तो सेल ग्रो करने लगते हैं और वो कम्प्लीटली लिपिड के साथ में फिल्ड हो जाते हैं, और ड्यू टू द लिपिड एक्यूमुलेशन granulosa cells and theca interna cells appears yellow. Okay, it turns into the color that is yellow colored. This process of accumulation of lipid inside the granulosa and the theca interna cells is called as a luteinization. Okay, just make sure the procedure being corpus luteum, that called as a luteinization, and theca interna cells are now called as a lutein cells. Lutein, Lutein cells. A lutein cell along with blood clot is called as a corpus luteum. Okay, complete समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की बात चल रही है, तो वेसिकुलर जो फॉलिकल था उसमें से ओवम निकल जाने के बाद वहाँ पे कैविटी हो जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है, बिकॉज इट्स अ वेसिकुलर फॉलिकल। तो ब्लीडिंग में जो ब्लड निकलता है वो वहाँ पे, वो कैविटी जहाँ पे ओवम था वहाँ पे वो क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट होने के बाद वहाँ पे जो ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इंटरथीका इंटरना सेल्स है उसमें लिपिड जमा होने शुरू हो जाता है, और लिपिड कलर इज़ येलो, तो वो येलो कलर्ड अपीयरेंस जो है वो आ जाती है वहाँ पे, और the yellow colored lipid formation occurs, and the whole process called as a luteinization, and these theca interna cell are now called as a lutein cells. Okay, lutein cell along with the blood clot is called as a corpus luteum. Just make sure theca interna cells turned into the lutein cells, and lutein cells including the blood clot called as a corpus luteum. तो ये corpus luteum जो है वो फॉर्म होता है। नाउ सब पॉइंट हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कौन से हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के ग्रो के अंदर ज़रूरी होंगे, दैट इज़ LH। ओके, ल्यूटिनाइजिंग, इसीलिए उसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, बिकॉज यहाँ पे ल्यूटिनाइजेशन हो रहा है। ओके, तो LH
जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन के अंदर ग्रो करेगा, काम करेगा। रोल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड एज ए प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू सिक्रीट होता है। एंड नाउ प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है थोड़े ही घंटों बाद प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, तो इट सीम्स कि कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होने के बाद यूट्रस के ऊपर उसकी जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो इंक्रीज़ यानी कि प्रोलिफरेशन होने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बिकॉज अगर थिकनेस वहाँ पे बढ़ेगी प्रोलिफरेशन से, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ दी जो कंसीव्ड ओवम है वो हो पाएगा और इजीली वहाँ पे ग्रो करके बेबी का फिटस फॉर्म हो पाएगा। दैट्स वाई द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो वहाँ पे आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो यू हैव टू आंसर दिस कि कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस द प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन अफेक्ट्स टू द यूट्रस एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड इट मेक्स टू द प्रोलिफरेशन प्रोसेस ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए। Now the next subtopic is degeneration of corpus luteum. After releasing the progesterone, after some time it get degenerated. If the ovum does not get fertilized, then after 12 days of the ovulation, corpus luteum transform to corpus albicans, ALBICANS, corpus albicans, and finally it get degenerate. Okay, degeneration of the corpus luteum suppresses the secretion of the estrogen and progesterone and menstruation occurs. Okay, तो menstruation तभी होता है जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बॉडी के अंदर कम होने लगती है, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा। तो वहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों वहाँ पे कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली इट इज़ द कॉजिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के लिए कई सारे फैक्टर्स एज़ पर आयुर्वेदा अगर हम बात करें, तो उससे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे हमारा ओवेरियन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर आपको इट्स वेरी नेसेसरी टू राइट डाउन अबाउट द oogenesis, ओवेरी के बारे में आपको लिखना है। देन डायग्राम डेफिनेटली आपको निकालना है पूरे फॉलिकल्स के अंदर, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंड दी सेकेंडरी फॉलिकल, एंड लास्ट वन इज अ टर्शियन फॉलिकल। और उसके बाद में देन corpus luteum and the regressing corpus luteum, then corpus albicans and cortex and the medulla part। इतनी चीज़ों आपको डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करनी होगी और इसी हिसाब से आपको एक एक जो स्ट्रक्चर है ओवेरी के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेशन, एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ द इंटरनल सेल्स ऑफ द वेसिकुलर पार्ट, द वेसिकुलर फॉलिकल। एंड ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से। यू हैव टू नो अबाउट दिस। दो चीज़ें और कम्प्लीटली कैसे फॉलिकल्स, सेकेंडरी हाइप्लॉइड, देन डाइप्लॉइड सेल्स, ये सब जो भी अभी मैंने समझाया, यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स बाय स्टेप। जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बोले हैं, यू हैव टू राइट डाउन द होल थिंग परफेक्टली। ओके, जस्ट आई एम रिपीटिंग द होल ओवेरियन साइकिल। ओके, उसके अंदर पॉइंट्स क्या होंगे, तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द ओवेरियन साइकिल। देन ओवेरी के बारे में आपको थोड़ा सा एनाटॉमिकली एंड हिस्टोलॉजिकली आपको थोड़ा सा समझाना है, दैट इज़ जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका, अल्बुजिनिया, स्ट्रोमा, देन कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। स्ट्रोमा के सब टाइप्स है। देन ओवेरियन फॉलिकल्स, ग्राफेन फॉलिकल्स एंड द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फॉलिकल्स आएंगे। देन वेसिकुलर फॉलिकल, that is Graafian follicle. Then function of the ovaries, you have to see production of the hormones and the ovulation, production of the secondary oocyte,
देन डेवलपमेंट ऑफ द ओवम, उसके अंदर आपको प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte उसके बारे में लिखना है, oogenesis के बारे में लिखना है, ओके, डाइप्लॉइड ओगोनियम एंड द हाइप्लॉइड ओवम। तो 23 पेयर्स टू दी 23 अनपेयर उसके अंदर वो कन्वर्ट होता है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte यू हैव टू राइट इन द oogenesis। देन ओवम के बारे में, देन ओवेरियन फॉलिकल के बारे में लिखना है। देयर इज 3 टाइप ऑफ फॉलिकल्स, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंड दी वेसिकुलर फॉलिकल। उसके अंदर आपको फॉर्मेशन ऑफ दी प्रीमॉर्डियल, प्राइमरी एंड वेसिकुलर फॉर्मेशन का डिफरेंट थिंग लिखना है। इन द प्राइमरी फॉलिकल देयर इज थीका सेल्स फॉर्मेशन यू हैव टू राइट डाउन, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। एंड वेसिकुलर फॉर्मेशन के अंदर you have to write down about the vessels. The outer layer is turned into the vessels vesicular layer, okay. Maturation you have to write down, 6 से 12 ग्रोइंग फॉलिकल में से सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो ग्रो होगा, ओके। द डायमीटर दैट इज़ 20 to 22 mm एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte वो आपको लिखना है। देन ओव्यूलेशन, ओवुलेशन कब होता है, देन प्रॉपर टाइम ऑफ द ओवुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, हार्मोन रिक्वायर्ड टू ग्रो अप द कॉर्पस ल्यूटियम, रोल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड द डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। इतनी बेसिक पॉइंट्स जो है आपको साइकिल के अंदर लिखनी है, ओवेरियन साइकिल के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, यानी कि स्पेशली सीइंग इन दी पर्टिकुलर थिंग, यानी कि जो यूट्राइन साइकिल है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसके साथ में मैं थोड़ा सा आयुर्वेद का भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एज सच हमारे सिलेबस के अंदर एज़ पर आयुर्वेदा इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक तो ओव्यूलेशन एंड ओवम का रप्चर होना एंड कंसीव रप्चर होना है, स्पेशली वहाँ तक प्रोसेस जो है वो अपान वायु के कंट्रोल में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गर्भ आर्तव निष्क्रमण क्रिय, ओके, दैट इज अपान वायु का काम जो है वो, ओके। तो आर्तव का निष्क्रमण होना यानी कि अगर कंसीव न हो तो भी आर्तव का दिखाई देना, यानी कि मंथली साइकिल जो है दिखाई देनी, मेंस्ट्रुएशन दिखाई देना, इट्स कम अंडर टू द फंक्शन ऑफ द अपान वायु। मगर यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व है, तो यू हैव टू सी द पित्त थिंग, ओके, पित्त, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिज्म हो, कोई भी एंजाइम सिक्रीशन हो, कोई भी हार्मोन सिक्रीशन हो, यू हैव टू ऑलवेज कोरिलेट विद द पित्त। तो यहाँ पे पित्त इज़ ऑलवेज देयर, इसीलिए आर्तव को जो है वो रक्त का उपधातु जो है वो बोला गया है। तो ये आपको बेसिक पता, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स नॉट रक्त धातु, इट इज़ द रस धातु का उपधातु बोला गया है, रज एंड स्तन्य। तो रज यहाँ पे आपको उसको लेना है कोरिलेट करके ओवम के साथ में, ओके। रज इज इक्वल टू ब्लीडिंग पर वजाइना फॉर 3 days एवरी मंथ जो हो रहा है, एंड दी आर्तव उसको हम ओवम के साथ में जो है वो करेंगे, बिकॉज अष्टांग संग्रह शाही स्थान के अंदर जो लिखा हुआ है ऋतु भवती इति आर्तवम, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम आर्तव कहते हैं। तो आर्तव को जनरली इसके साथ में यानी कि ओवम के साथ में हम कोरिलेट कर सकते हैं, एंड दी रज को हम ब्लीडिंग के साथ में यानी कि मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग जो है उसके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये बातें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, आर्तव और रज का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। देन इसके बाद में जो डिफरेंट थिंग्स जो इसके अंदर लिखी हुई है, या तो हमें समझना है रस धातु फॉर्मेशन का इसके साथ में कैसे कोरिलेशन होगा, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो रस धातु जब भी फॉर्म होती है यानी कि कंप्लीट फॉर्मेशन के अंदर, तो इट डेफिनेटली लीड्स टू दी FSH एंड LH स्टिमुलेशन टू दी ओवेरी, ओके, एंड इट लीड्स टू दी प्राइमरी प्रीमॉर्डियल प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी फॉलिकल और दी वेसिकुलर फॉलिकल।
तो ये निर्माण में हमारी रसद धातु जो रहती है वो बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करती है। तो जब भी अगर आर्तव से रिलेटेड या रजत से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या डिसीज़ हो तो आपको हमेशा रसद धातु को कंसंट्रेट करके एंड सेकेंडरी अपन वायु को कंसंट्रेट करके आपको ट्रीटमेंट करनी है, न कि रक्त को और पित्त को ज़्यादातर देखना है। डेफिनेटली मैंने बोला कि हार्मोन्स लेवल जो है वो पित्त हम कोरिलेट कर सकते हैं, मगर इफ़ हार्मोन इज़ इन्वॉल्व ओनली देन यू हैव टू सी दी this pitta formation, okay, or the pitta correlation, because many cases are there वहाँ पे hormonal changes उतने नहीं होते, फिर भी there is a PCOD and there is a lot of infertility cases or the problems are there, okay. So thank you so much dear students, please share this lecture to your colleague and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Production. Thank you so much for the today and the calm listening. Have a nice day. Best of luck my dear students.